Good morning to all of you, and myself Maruti Nandan Singh. And again, we are gathered here to study another topic of the biology section. And today it's a time of lockdown, so it is a very important that what is the reason of the lockdown, what is the exact reason behind of this lockdown. So, as you know that there is a single reason behind of this lockdown process, and that is a virus, and the name of that virus is COVID-19. That is a disease, and the name of that virus is coronavirus. So exactly, it is a very necessary, and it is the requirement of the time regarding of the different type of the examination, or you can say the requirement of the different type of competitive examination, that we know that different type of competitive examinations are coming and going to be held on the coming soon, yeah, coming time. So I think that there should be a requirement to study about to the COVID-19 and coronavirus, that exactly what is the COVID-19 and what is the coronavirus, how many types of the virus, and exactly what is the virus and what is the body structure of the virus, and how it can cause a pandemic issue in the global level. And that is a recent situation. Actually, COVID-19 is a pandemic situation. It creates a pandemic in a global level, not only the India, also in the whole international level. It creates a pandemic situation. So we will talk about to the whole scenario. We will talk about to the all dimensions related to the COVID-19 and coronavirus, and think about to that, and understand all the dimensions, all the segments related to the COVID-19 and coronavirus. So let us start with me, and before starting, just arrange a pen and paper. That is a very mandatory to study this topic, because I have no marker and board. Actually, I have a marker, but there is a no board present in my room. So that's why I will try to give all the things by the explanation and by the vocal communication. So it is a mandatory to you should have a pen and a copy or paper to note down the important things. And I will start it very slowly and very basic mode, and from the very basic mode we will go towards the peak of this topic, and one by one we will clear out all the things about to the COVID-19 and coronavirus. So just you have 1 minute to arrange a paper and a pen. So just arrange a paper and pen, and actually you have a 1 minute, so I will try to take out tea. So it's okay. I hope that you have arranged a pen and a paper. So actually somebody say me that, sir, you are going to lecture in a English medium and English language, so it is a big problem for that Hindi medium of guys. So that's why I have decided that I will convey my all the lectures and video lectures, all the lectures and the PDF in a both language. You can say that will be in bilingual language, Hindi and English. So आज हम अपने इस टॉपिक को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए तथा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो एंड काफ़ी फ्रूटफुल हो, एंड आई थिंक कि उन्हें काफ़ी आसानी हो इस लेक्चर को गेन करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो आपके लिए सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोविड-19 एक या कोरोना जिसे आप कहते हैं, कोरोना एक टाइप का वायरस है, विषाणु है. सो इनिशियली इट इज़ रिक्वायरमेंट दैट वी विल टॉक अबाउट टू द वायरसेस. बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले वायरस के बारे में ही जान लें. तो ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको जब पर्टिकुलर वायरोलॉजी पढ़ाऊँगा, तो वायरोलॉजी के सेशन में आप टोटल सारी चीज़ें सिर्फ वायरस के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड वायरस के बारे में जो जानना ज़रूरी है, जो इससे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है. तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा. देखिए, वायरस
एक्चुअली वायरस के बारे में कहा जाता है कि वायरस ना तो जीव है और ना ही निर्जीव है। वाई वी से दैट वायरस, नाइदर वायरस आर द लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वायरस ना तो जीव है और ना ही निर्जीव है? देखिए उसका कारण है, तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, दैट इज़ अ बेसिक थिंग्स, या यू कैन से दैट दीज थिंग्स आर द बेसिक सिम्टम्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन चीज़ें हैं जो किसी भी जीव के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या उन जीवों का चरित्र है, एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है। ठीक है, वो क्या है कि दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये तीन परिघटनाएं ना होती हों। पहला क्या है? पहला है उसमें वृद्धि का होना, ग्रोथ। दूसरा डेवलपमेंट यानी विकास। और तीसरा है उसमें कौन सी चीज़ें हैं? तीसरा है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी वृद्धि, विकास और प्रजनन। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग होगी, उन तीनों चीज़ों, उन सभी चीज़ों में ये तीन लक्षण आपको दिखाई देंगे: ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, वृद्धि, विकास और जनन। जनन का मतलब है कि अपने जैसा ही किसी दूसरे को उत्पन्न करना। जैसे ह्यूमन में जनन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों का पैदा होना, या किसी भी अन्य जीवों या पक्षियों में या सरीसृपों में, रेप्टाइल्स में एग का प्रोड्यूस होना, बर्ड्स में एग का प्रोड्यूस होना। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस या जनन प्रक्रिया है। और वृद्धि का मतलब है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे एज या टाइम पीरियड बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो समय बढ़ने के साथ साथ शरीर के आकार प्रकार में तथा डिफरेंट टाइप से बॉडी में चेंजेस आते हैं। उनके आकार में यानी साइज में, शेप में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आते हैं, उसी को हम कहते हैं वृद्धि। लेकिन विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है अवस्था में परिवर्तन। सो इट इज़ अ वेरी मैंडेटरी, ये बहुत ही जरूरी है कि आप वृद्धि और विकास के अंतर को समझ पाएं। वृद्धि का मतलब है आकार में परिवर्तन होना, लेकिन विकास का मतलब है कि आपके क्वालिटीज़ में चेंजेस आ जाना। जैसे मान लीजिए कि एक टाइम के बाद व्यक्ति की वृद्धि, या किसी भी जीव में अगर हम ह्यूमन को लें, तो ह्यूमन में एक एज के बाद ना तो लंबाई बढ़ती है और ना ही चीज़ों में ज़्यादा कुछ ग्रोथ होता है। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। जैसे एज के साथ मूंछ, दाढ़ी का आना, अगर हम मेल की बात करें तो उनमें मूंछ और दाढ़ी का विकास होना ना, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर ओल्ड एज में दांतों का गिर जाना, ये सारी चीज़ें जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं इस तरीके के, जो हमेशा होते रहते हैं। जैसे प्लांट्स में छोटे से सीड से जर्मिनेशन के द्वारा या अंकुरण के द्वारा प्लांट का ग्रो होना, और फिर वो प्लांट्स में स्टेम के साथ साथ लीव्स का डेवलपमेंट होना, लीव्स के साथ फिर उसमें बर्ड्स यानी कलियों का निकलना, कली के साथ फ्लावर या पुष्प का विकास होना, और फिर फ्लावर दैट मीन पुष्प के साथ उसमें सीड का डेवलपमेंट होना। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, तीनों चीज़ें एक दूसरे से भिन्न हैं, और ये तीनों चीज़ें लक्षण हैं किसी जीव का। जबकि किसी भी निर्जीव में ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पाई जाती, ना तो ग्रोथ होता है, ना ही डेवलपमेंट होता है, और ना ही रिप्रोडक्शन होता है। मे बी पॉसिबल कि अगर ग्रोथ भी होगा तो वो फिजिकल ग्रोथ होगा, किसी पर्टिकुलर कारण से होगा। जैसे एक सूखी लकड़ी जो कि पूरी तरीके से डेड है यानी नॉन लिविंग है, अगर आप उसे पानी में डाल दें तो उस पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण उसके आकार में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ग्रोथ, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एग्जैक्टली। तो ये जैविक विकास नहीं है या जैविक वृद्धि नहीं है, इसलिए हम, और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसे जीव नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वायरस के बारे में, कि वायरस ना तो एक जीव है और ना ही एक निर्जीव है। तो उसका रीज़न है कि, तो फिर वायरस है क्या? एग्जैक्टली, वायरस आर द फ्रीली मूविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरस आर द फ्रीली मूविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि वायरस स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले संक्रामक कण हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले संक्रामक कण हैं, जो बेसिकली हवा में, मिट्टी में, इन सभी में उपस्थित हो सकते हैं। ज़्यादातर वायरस हवा में उपस्थित होते हैं। अब ये कैसे हम कहते हैं कि ये जीव और निर्जीव नहीं है? देखिए, रीज़न ये है कि वायरस जब तक फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स की तरह या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स की तरह एयर में मूव करता है, यानी वायरस या विषाणु जब तक हवा में स्वतंत्र रूप से मूव करता है और किसी भी जीव के संपर्क में नहीं आता है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक वे एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। यानी उनमें ना तो ग्रोथ होगा, ना ही डेवलपमेंट होगा, और ना ही रिप्रोडक्शन होगा।
लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं या उसे संक्रमित कर देते हैं, यानी इन्फेक्शियस कर देते हैं, इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, तो जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा तो इसके अंदर की सारी क्वालिटीज़ एक लिविंग की तरह हो जाती हैं, यानी इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि वायरस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, यानी कुछ सेकेंड में ही ये हज़ारों की संख्या में तब्दील हो जाते हैं। बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए आप देखिए वायरस से होने वाली जो भी वायरल डिजीजेज हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और एक से दूसरे में भी काफ़ी फास्ट इनका देखिए आप तो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अगर ये तो थी बेसिक चीज़ें, लेकिन अगर हम वायरस के थोड़ा सा और अंदर की बात करें तो वायरस के अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में जो आउटर कवरिंग है पूरी, वो आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है। वो एक टाइप का सेल स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे अभी के लिए, तो सिर्फ वो ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में उपस्थित होते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाते हैं। और इनका काम है एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करना, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसके कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करना ही मेन कारण है या मेन लक्षण है आपका जेनेटिक मटेरियल का। तो दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक डीएनए जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। हाँ, तो दोनों ही चीज़ें, मैं ये स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज यू आर यूजिंग द पेन एंड कॉपी, सो यू कैन मेंशन दैट। सो डीएनए एंड आरएनए दोनों ही एक टाइप के जेनेटिक मटेरियल हैं और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ह्यूमन में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में या ज़्यादातर जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, उन सभी में डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस वायरस की बात करें तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कोरोना पे आए अगर हम, तो कोरोना जो आपका एक टाइप का वायरस है, कोविड-19 या कोरोना वायरस, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन दैट मीन्स कि किसी का एंटी बनाना, तो उसको बनाने के लिए उसके जेनेटिक कोड को समझना बहुत ज़रूरी होता है या उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते तब तक उसको तोड़ने के लिए, हम उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए हम किसी भी तरीके के वैक्सीन को नहीं बना सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, अगर आप देखें तो जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है। अगर आपको देखना हो तो आप 12th की एनसीईआरटी उठाइएगा और उसमें आपको मिल सकता है ये वर्ड। तो जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जेनेटिक मटेरियल की ढेर सारी कॉपिंग बनाई जा सकती है, कॉपीज़ तैयार की जा सकती है। तो रीज़न ये है कि कोरोना वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम चेंज कर ले रहा है। अब स्ट्रक्चर चेंज करने के कारण हम मान लीजिए उसके एक जेनेटिक मटेरियल को अगर उसकी कॉपीज़ बनाते हैं यानी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हमें मिलती हैं और हम 1 बाई 1 करके सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जब बाद में देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं उसका वैक्सीन बनाने में। हालांकि बहुत सारी कंट्रियों ने इसका दावा किया है कि वो वैक्सीन बनाने में जल्दी सफल हो जाएंगे। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी वायरस के बारे में। अब वायरस ढेर सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, आप जानते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जब वायरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। तो सबसे इनिशियल जो है वो जो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में मिल जाएंगी, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बेसिकली, जो बहुत ही ज़रूरी है आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो परीक्षाएं होने वाली हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो ये है कि एग्जैक्टली कोविड-19 या कोरोना वायरस ये एक है या बहुत सारे हैं, ये है क्या? तो देखिए कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना कोरोना एग्जैक्टली कोरोना इज अ फैमिली ऑफ वायरस, ये एक तरीके का फैमिली है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस। एंड अगर हम WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो दुनिया में लगभग 100 टाइप्स के वायरस हैं इस फैमिली में, यानी कोरोना वायरस फैमिली में 100 टाइप्स के वायरस पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक के डिफरेंट रिसर्चेस के आधार पे जो भी चीज़ें आई उनके आधार पे सिर्फ दुनिया में 7 ही कोरोना वायरस फैमिली के 7 ही वायरसेस को हम जान सके हैं, जबकि होते 100 से भी ज़्यादा हैं। अब इन 7 वायरसेस को जिनके बारे में हम जान चुके हैं एग्जैक्टली, तो वो सभी सातों कोरोना ही हैं। इन सातों के नाम क्या है, तो एग्जैक्टली ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना कोरोना एक फैमिली है, इट इज़ अ नॉट अ सिंगल वायरस, इट इज़ अ फैमिली ऑफ वायरस एंड देयर आर several type of the viruses, yeah, coronavirus, several type of the coronaviruses or numerous type of the coronavirus, approximately 100 type of the coronaviruses are present in coronavirus family. So we have identified only 7 type of the coronaviruses, and they have a different name. So exactly it should be required that we have a good understanding and knowledge about to the name of that 7 type of the viruses, because in a coming examination, examiner can ask the particular name of the corona family virus. So it is a very important question. तो 7 प्रकार के कोरोना वायरसेस को हमने आइडेंटिफाई किया है अभी तक, यानी WHO ने आइडेंटिफाई किया है। उन सातों के काम क्या है? सो अब आप यूज़ करेंगे अपने पेपर का और पेन का। तो सबसे पहला वायरस जो है उसका नाम आप लिखिएगा 229E, यानी 229E। 229E 229E is also a type of virus and it is a member of कोरोना वायरस फैमिली। ये भी कोरोना वायरस है एक टाइप का, जो कोरोना वायरस फैमिली का ही मेंबर है। और इसमें और बाकी वायरस में अभी थोड़ा सा हम सातों के बारे में बात भी करेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं आप। दूसरा लिखेगा, दूसरा है HKU1। पहला था 229E एंड दूसरा है आपका HKU1 एंड थर्ड है NL63। NL63 फोर्थ है MERS, मर्स जिसे आप कह सकते हैं, MERS। फिर है फोर्थ आपका SARS-CoV-1। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, SARS-CoV-1 एक ऐसा कोरोना फैमिली का वायरस है जो पहले भी डिजीज़ कॉज कर चुका है। इससे पहले भी दुनिया में ऐसी बीमारी फैल चुकी है। निमोनिया टाइप के सिम्टम्स उसमें दिखे थे, और अगर देखें आप तो उसमें भी बुखार और ये सारे लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का इतना प्रोसेसिंग नहीं था, इसलिए उसका वैक्सीन बनाने में काफ़ी आसानी हुई और उसके वैक्सीन भी लोगों ने बनाए थे। तो SARS-CoV-1, सार्स दैट मीन्स SARS, फिर कोव CoV-1, SARS-CoV-1। फिर लास्ट है आपका SARS-CoV-2, SARS-CoV एंड -2, SARS-CoV-2। सो अगर आप इन सब को काउंट करें तो आई थिंक कि कितने वायरसेस हो गए होंगे? 6, है ना? 6 वायरसेस हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब 7 कौन सा है? तो 7 आप जानते हैं कौन सा है? कोविड-19, एग्जैक्टली, यस, कोविड-19, दैट इज़ अ कोविड-19 रिसेंटली, है ना, जो अभी पैंडेमिक बना हुआ है, दैट इज़ अ कोविड-19। ठीक है, तो अब देखिए इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 इस इनिशियल वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें, 229E, HKU1 एंड NL63, इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जो है अराउंड द ग्लोब, अगर पूरे ग्लोब यानी पृथ्वी की बात करें तो अराउंड द ग्लोब पीपल कॉमनली गेट इन्फेक्टेड बाय दीज।
पूरी दुनिया में ये काफ़ी आसानी से लोगों को इन्फेक्ट करने वायरस हैं, लेकिन इनका ज़्यादा सिम्टम्स इनसे ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं होते, इतना ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं रहता। लेकिन ये भी एक टाइप से कोरोना फैमिली के ही मेंबर है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि कोरोना फैमिली का कौन सा वायरस पूरी दुनिया में या ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा या सामान्य रूप से कॉमनली लोगों में पाया जाता है ना, या लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा इन तीनों ही वायरसेस से पूरी दुनिया में लोग संक्रमित हुए हैं या होते हैं। और वो कौन सा है? 229E, HKU1 एंड फिर है आपका NL63। अब बचे हुए 3 के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पहले इन तीनों के बारे में बात करें, 3 दैट मीन्स की मर्स, MERS एंड SARS-CoV-1 एंड SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, अगर इन 3 रिमेनिंग वायरसेस के बारे में हम या विषाणुओं के बारे में चर्चा करें, तो ये अगर हम देखें इनके बारे में, तो समटाइम्स कोरोना वायरस, कभी कभी अगर हम देखें तो ये कोरोना वायरस एनिमल को भी इन्फेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही ये इन्फेक्ट करते हैं, ये जानवरों में भी संक्रमण पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद ये जैसे ही जानवरों को संक्रमित करते हैं, तो जानवरों को संक्रमित करने के बाद बिकम अ ह्यूमन कोरोना वायरस, ये ह्यूमन कोरोना वायरस में भी चेंज हो जाते हैं। यानी मर्स हो या SARS-CoV-1 हो या SARS-CoV-2, इनिशियल लेवल में पहले ये जानवरों को संक्रमित करते हैं, और जानवरों को संक्रमित करने के बाद ये जो है बाद में एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाला वायरस बन जाते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 2 हैं, SARS-CoV-1 या SARS-CoV-2, अगर इनकी हम बात करें तो एक तरीके से ये दोनों ही वायरस SARS-CoV-1 एंड SARS-CoV-2, ये दोनों ही एक दूसरे से जेनेटिकली इंटरलिंक्ड है, यानी आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से आंतरिक संबंध स्थापित रखते हैं, या आंतरिक संबंधों को प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इंटरलिंक्ड है जेनेटिक रूप से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कोरोना वायरस फैमिली के कौन से 2 वायरस हैं जो आंतरिक रूप से एक दूसरे से जेनेटिक संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सा होगा? SARS-CoV-1 एंड SARS-CoV-2। इसको घुमा के आपसे पूछ सकता है कि SARS-CoV-1 से जेनेटिक रूप से अंतर संबंध स्थापित करने वाले वायरस का नाम क्या है? तो SARS-CoV-2। और भी कई तरीके से इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो ये था आपका कोरोना वायरस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। अब एक सबसे बड़ी बात ये है, वो बात ये है कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे अगर आप देखें तो इस लॉकडाउन के टाइम में सबसे बड़ा इशू उभर के आया है। पहली बात तो लॉकडाउन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और इशू क्या है, वो इशू है ह्यूमन राइट्स का। सॉरी, लॉकडाउन की सिचुएशन में ह्यूमन राइट्स का इशू क्या है? देखिए लॉकडाउन में है क्या, लॉकडाउन में कई सारे कानून बनाए गए और जिसमें ये निर्धारित किया गया कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग बाहर आ जा सकते हैं या नहीं आ जा सकते हैं, और उन्हें कितनी परमिशन ग्रांट की जाएगी, किस तरीके से उन्हें निषेध किया जाएगा, उनके बाहर निकलने को निषिद्ध किया जाएगा, ये सारी चीज़ें लॉकडाउन में निर्धारित की गई, जिससे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ मीडिया में भी बात की कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट। यानी हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में भी लोगों को कुछ पर्टिकुलर अधिकार दिए गए हैं। भारत की जनता को या सिटीजन्स को कुछ पर्टिकुलर अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें फंडामेंटल राइट कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। उन मूल अधिकारों में बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा और भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जो संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इनके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहीं से एक लॉ बना है जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, मानवाधिकार अधिनियम। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बिकॉज क्योंकि ये आप ऐसा मत समझिए कि ये साइंस का पोर्शन नहीं है। अभी मैं इसको इंटरलिंक करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये साइंस से रिलेटेड कैसे है। सबसे बड़ी बात कि मानवाधिकार के लिए वैश्विक स्तर पर अगर हम मानवाधिकार की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो ह्यूमन राइट्स के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर या पूरे वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार है, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में
कंट्रोल करती है या उसे मॉनिटर करती है। तो ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में या पूरे ग्लोबल लेवल पे मॉनिटर करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड अटेंडेंस एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन वोल ग्लोबल एरिया। यानी संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया में या पूरे ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के समन्वय के लिए या उसके नियमन के लिए या नियंत्रण के लिए या उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, नेशनल लेवल पर देखें, तो नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो जितनी भी राष्ट्र हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं जहां भी ह्यूमन राइट्स लागू होता है, क्योंकि सारी दुनिया में ह्यूमन राइट भी नहीं लागू होता है, तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो भी देश की गवर्नमेंट्स है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए यानी कंट्री लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट के लिए वहाँ की सरकारें रिस्पॉन्सिबल होती हैं या उस देश की अलग अलग गवर्नमेंट जिम्मेदार होती हैं। जैसे नेशनल लेवल पर केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी और राज्य स्तर पर राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाया गया जो केंद्र स्तर पर जिम्मेदार होगा, और राज्य मानवाधिकार जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो स्टेट स्तर पर यानी राज्य स्तर पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या जिम्मेदार होगा। तो याद रखिएगा, स्टेट लेवल पर कौन होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग, और केंद्र लेवल पर कौन होगा, केंद्र लेवल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा। तो एक देश में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2 मानवाधिकार आयोग हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं या संरक्षण सुरक्षा प्रदान करते हैं लोगों के मानव अधिकार को। फिर मानवाधिकार से तात्पर्य क्या, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स एग्जैक्टली, ह्यूमन राइट है क्या, तो इससे तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो किसी भी व्यक्ति के लिए, वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो पर्टिकुलर, किसी भी व्यक्ति के जीवन यानी लाइफ, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और इसके अलावा याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लाइफ, फ्रीडम, समानता यानी इक्वालिटी, और प्रतिष्ठा सेल्फ स्टीम इससे जिम्मेदार है, इससे मतलब रखता है। यानी कि दुनिया में हर एक इंसान को स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और उसके अलावा प्रतिष्ठा से जुड़े हुए जो भी अधिकार दिए गए हैं वो सभी मानव अधिकार में आते हैं। और अगर मैंने अभी बात की थी फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट में भी यही दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, एंड लास्ट में समानता का अधिकार के बाद प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकार। यानी कोई भी आपको जातिगत आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता, आपको अपमानित नहीं कर सकता है। फिर या किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता आपके साथ। जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र की डेफिनेशन की बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार के बारे में कहा है, तो संयुक्त राष्ट्र की डेफिनेशन के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, भाषा या किसी भी अन्य आधार पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का या कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती है। और यही क्या है, मानवाधिकार है। यानी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होने वाले अधिकार ही क्या है, मानवाधिकार है, यानी ह्यूमन राइट्स है। अब अगर हम मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानवाधिकार आयोग के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम एक एक्ट आया, ह्यूमन राइट्स के बारे में एक एक्ट आया जिसे हमने कहा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत, यानी एक सबसे पहले एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहा गया मानवाधिकार अधिनियम, जो 1993 में आया, 1993 में आया। और मानवाधिकार अधिनियम 1993 में ये कहा गया, इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए और इन प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक संवैधानिक प्रयास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ के रूप में, संवैधानिक रूप में इसे स्वीकार किया गया या देखा गया।
अब मानवाधिकार आयोग क्या है? तो मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं। किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा ये हेड नहीं की जाती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, कई सारे मेंबर्स मिलकर इसे कहीं ना कहीं मॉनिटर करते हैं। जिसमें अब इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक प्रेसिडेंट होता है, चेयरपर्सन होता है जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, और बाकी मेंबर होते हैं। यानी टोटल 7 मेंबर होंगे, जिनमें से एक प्रेसिडेंट यानी चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, बाकी 6 अन्य मेंबर होते हैं। अब इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति करती है। यानी मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? तो उस देश का पर्टिकुलर, यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक टीम गठित की जाएगी जो नियुक्ति करने का काम करेगी, और वो पूरी टीम प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। इसमें होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो टीम है वो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है फिर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। यानी फाइनली द रिक्रूटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट commission, recruitment of the chairperson of the human right commission is done by president, but how is done by president, but in the suggestion of a committee headed by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी। वो कमेटी राष्ट्रपति को सुझाव प्रस्तुत करेगी नियुक्ति के बारे में, और फिर उसी सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगा। अब अगर हम ये हम केंद्र स्तर के मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे थे। अगर हम राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग से जुड़े मुद्दों की बात करें तो इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए राज्य स्तर पर मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। अभी तक देश में कुल 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो लेकिन उनमें से केवल 26 स्टेट हैं जहां पे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। बाकी जगह पर राज्य मानवाधिकार जैसा कोई प्रावधान नहीं है। मानवाधिकार आयोग के पास कैसे राइट हैं, कैसी पावर्स हैं? तो अगर हम सिविल कोड की बात करें तो सिविल कोड के पास जितने भी राइट हैं या जो पावर्स सिविल कोड के पास होती हैं, ठीक उनके ही बराबर, बिल्कुल एग्जैक्ट, इक्वल टू राइट, बिल्कुल इक्वल, सिविल कोड के इक्वल जो भी राइट है वो राइट किसके पास होंगे? मानवाधिकार आयोग के पास भी होते हैं। यानी सिविल कोड के बराबर की शक्तियां मानवाधिकार आयोग को प्रदान की गई हैं। आयोग के पास यहाँ तक यह भी अधिकार होता है कि वो मानवाधिकार से जुड़े मामलों में केंद्र या राज्य सरकार से किसी जानकारी या रिपोर्ट को भी मांग सकता है। यानी अगर किसी जानकारी या रिपोर्ट की आवश्यकता हो तो उस जानकारी या रिपोर्ट को वो राज्य या केंद्र सरकार से मांग सकता है वो आयोग। और दूसरी बात, यह आयोग केवल 1 वर्ष के अंदर, ये थोड़ा सा टिपिकल है जानना, थोड़ा सा, कि मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये ह्यूमन राइट कमीशन उन्हीं चीज़ों की डिटेल राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मांग सकता है, उन्हीं मामलों की डिटेल मांग सकता है जो मामले 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर घटित हुए हैं। 1 साल से पुराने किसी भी मामले के या किसी भी मैटर के, किसी भी इशू से रिलेटेड, वो भले ही मानवाधिकार से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन उसके बारे में वो राज्य या केंद्र सरकार से कोई भी रिपोर्ट नहीं मांग सकता है। सिर्फ 1 साल के अंदर घटित होने वाले मामलों के लिए ही वो रिपोर्ट मांग सकता है केंद्र या राज्य सरकार से। इसके अलावा आयोग पीड़ित व्यक्ति को तत्काल, सडन, बिल्कुल क्विक, आयोग किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, यानी जिसके साथ मानवाधिकार का हनन हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन राइट हुआ है जिस किसी भी पर्सन के साथ, उस पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए या उस पर्सन को तत्काल अंतरिम हेल्प भी प्रोवाइड कर सकता है, अंतरिम सहायता भी प्रदान करने के लिए वो क्या करेगा? मान लीजिए जिस व्यक्ति का मानवाधिकार हनन हुआ है उस व्यक्ति के लिए ह्यूमन राइट कमीशन या मानवाधिकार आयोग उसकी सहायता के लिए, उसकी अंतरिम सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकता है
या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भी मदद ले सकता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मदद से किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जिसका मानवाधिकार हनन हुआ है उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता दिला सकता है या उसको दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब मानवाधिकार आयोग के लिए एक सबसे बड़ी बात है जो जानना जरूरी है कि मानवाधिकार संरक्षण बिल, एक बिल पास किया गया। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए एक बिल था जिस बिल में संशोधन किए गए, यानी मानवाधिकार के अधिनियमों में संशोधन के लिए मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019 द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया। इससे पहले अभी हमने चर्चा अभी जस्ट हमने की है, इसके बारे में डिस्कशन किया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया गया और जिस बिल को कहा गया मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल, और वो हाल ही में 2019 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसे कहा गया मानवाधिकार संरक्षण संशोधन बिल 2019, और इसे अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया 2019 में। और इस संशोधन के द्वारा या इस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एवं जो भी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोर्टें हैं, मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी अदालतें हैं, उन सभी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा कि स्टेट्स में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा और केंद्र में एक पर्टिकुलर मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा मानवाधिकार अदालतों के गठन की भी बात कही गई है। इसमें संशोधित प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहा हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, साथ ही आयोग के सदस्य के रूप में 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। यानी कहने का बात यह है कि अगर इसके चेयरपर्सन की बात की जाए, इस आयोग के चेयरपर्सन की बात की जाए, तो अगर कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस आयोग का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि इस आयोग में 7 मेंबर होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, बाकी 6 अलग मेंबर होंगे। तो एक प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, और उस अध्यक्ष को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये भी मैंने बताया, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री के साथ एक पूरी टीम होगी, उस टीम की सलाह पर। दूसरी बात यह है कि कौन सा व्यक्ति, उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या फिर दूसरी बात वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो। ठीक है, उसको अध्यक्ष हम नियुक्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम मेंबर्स की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो सदस्य के रूप में 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना बहुत ही अनिवार्य है। एक महिला सदस्य का होना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जब तक आयोग में कोई फीमेल मेंबर नहीं होगी तब तक वो फीमेल की प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को नहीं समझ सकती, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसलिए ये जरूरी किया गया कि इस कमेटी में एक मेंबर फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त राज्य पिछड़ा आयोग, जो भी पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा आयोग आप समझते हैं बैकवर्ड कमीशन, तो राज्य पिछड़ा आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात करें हम, बेसिकली नेशनल बैकवर्ड कमीशन, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ना, इनके जो चेयरपर्सन होंगे उनमें से किसी एक को हम चुनेंगे मेंबर्स के रूप में। एवं राष्ट्रीय दिव्यांग जन आयोग, दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड वाले जो होते हैं, तो हैंडीकैप्ड कमीशन जो है, नेशनल हैंडीकैप्ड कमीशन आयोग का जो भी चेयरपर्सन होगा या चीफ कमिश्नर होगा, उस चीफ कमिश्नर को भी हम एक मेंबर के रूप में चुन सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान हैं किस तरीके से कमेटी का गठन किया जाएगा। ये था आपका मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई और वही प्रॉब्लम मुद्दा बनी कोविड-19 के टाइम पे। और वो मुद्दा क्या बनी है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 एक टाइप का पैंडेमिक इश्यू बना हुआ है। पैंडेमिक का मतलब बहुत ही घातक और ग्लोबल लेवल पर समस्या उत्पन्न कर रहा है।
तो इसके लिए एक अभी हाल ही में एक एक्ट पास किया गया और जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस। एक तरीके का ऑर्डिनेंस या बिल पास किया गया जिस बिल का नाम था द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट, फिर से ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आई एम कंटिन्यू ना, इसको लिखिए द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। और इसके बारे में हम जल्द ही चर्चा करेंगे आज। आफ्टर सम टाइम we will provide we will provide different type of the lecture related to the COVID-19 because it was just an initiation about to study the COVID-19 and coronavirus, and after that we will go to post different type of the lectures and very extremely energetic and very knowledgeable things have been included in that lecture, and you will get that easily, you will capture that easily, and you will capable to understand, yeah, to increase your knowledge, to enhance your knowledge level. So thanks a lot, meet you again after some time with another topic related to the coronavirus, and thanks a lot, have a nice day.